Hello everyone, welcome back to the Mark Dasak. So in last 4 5 episodes we are done with the CAPF Assistant Commandant 2024 paper. Today we are moving toward the CDS 1 2025 paper. In this paper you will find a lot of direct exactly repeated questions from your CAPF 2024 paper, and you will find many questions exactly repeated in your CAPF 2025 paper from your CDS paper. So without wasting any further time, let's move towards the first question of this series. Okay, so first question says, consider the following statement with reference to the secondary waves generated during the earthquake. So there are basically two type of waves. First is body wave and the second is surface wave. Body waves are basically waves that travels through the interior of the earth. So here body waves can be divided into two waves, that is P waves and S wave. P wave is the wave is basically primary wave, and S wave is the secondary waves. Okay, so let's move towards the question generated during the earthquake. So first option says, first statement says they create troughs troughs and crests in the material through which they pass. Okay, second says the direction of vibration of S wave is perpendicular to the wave direction of the in the vertical plane. So here you can say particular perpendicular बता रखा है ना, waves है ना, it create है ना trough and crest. So ये इस हिसाब से ट्रेवल करती है. Okay, you can find trough and crest है ना. Second, the direction of vibration of the S wave is perpendicular. Here you find that ये वाले वाइब्रेशन है तो यहाँ से परपेंडिकुलर जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, परपेंडिकुलर हुआ. सो here you can say both A and B is correct. So option C will be the correct option. Okay, let's move towards the question number second. Identify the mineral on the basis of their characteristics related to it. So here first say it is very factual question. If you know, then you can answer it, otherwise you can leave this type of questions. First statement say it is usually a greenish crystal. Okay, greenish crystal. You have to first makes don't some type of अंडरलाइनिंग है ना, अंडरलाइन करते चलो इनको, ताकि क्या हो ना कि आपको पता चले कि इसमें मेन वर्ड्स क्या दे रखे हैं. जैसे ग्रीनिश क्रिस्टल हो गया, इट ऑफन फाउंड इन बेसाल्टिक रॉक्स. ओके, थर्ड इज मैग्नीशियम, आयरन, सिलिका आर इट्स मेजर एलिमेंट. ओके, सो हियर यू विल फाइंड कि जो ना फ्रॉम द थर्ड वी कैन मतलब इंटरप्रेट कि हाँ इनसे जो देर आर थ्री मेजर एलिमेंट दे रखे हैं ना. So here basically they are like greenish crystals. So here you can with the two can you can find it is olivine है ना. If you know, then you can go with these type of questions. If you don't know, I will suggest you that you should better leave with these type of questions instead of going just with the negative marks. Okay, so third question says which of the following statement with reference to the salt weathering. Okay, salt weathering अंडरलाइन कर लो यहाँ पे ताकि पता चले कि किस चीज़ पे क्वेश्चन पूछा है, इतना नहीं पढ़ने की जरूरत. ओके, फर्स्ट सेज को सोल्ट क्रिस्टलाइजेशन. ओके, क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टल्स बन जाते हैं सोल्ट के है ना, इज द मोस्ट इफेक्टिव ऑफ ऑल द सोल्ट वेदरिंग okay process. Okay, second says the salt crystallization growth is more effective or sedimentary rocks as compared to igneous rock. So basically salt crystallization means we can directly say कि जैसे कि ये कोई है रोक है ना, यहाँ पे क्रेक है, यहाँ पे क्रेक है, इसको ऐसे दिखा सकते हैं जैसे कि ये क्रेक है ना, यहाँ पे क्या हुआ सोल्ट है ना, मतलब कि जमा हो गया है ना. अब ये क्रिस्टल बनेगा, तो जब क्रिस्टल बनेगा तो इसका मतलब कि ये फैलेगा तो फिर यहाँ पे ये है ना रॉक्स को तोड़ेगा है ना. तो ये हो गया वेदरिंग करेगा रॉक्स की है ना, क्योंकि जब होता है ना विद द मानसून विद द वेदर यू विल फाइंड द लाइक है ना देयर विल बी लाइक है ना साइकिल. जब सोल्ट है ना क्रिस्टल बनता है, सोल्ट वापस नॉर्मल कंडीशन में आता है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि मोस्ट इफेक्टिव है क्योंकि ये ब्रेक डाउन कर देता है रॉक को, इसमें पावरफुल होता है ना इतना है. तो सेकंड सेज तो फर्स्ट इज करेक्ट. सेकंड इज सोल्ट क्रिस्टल ग्रोथ इज मोर इफेक्टिव और सेडिमेंट्री रॉक्स में बेसिकली मतलब क्रेक्स के लिए जगह मिल जाती है. इग्नियस रॉक्स आर लाइक ना जो मतलब कि लावा मेग्मा से बनती है ना, तो उनमें मतलब कि जो वो है ना क्रेक्स कम होते हैं. वहीं सेडिमेंट्री रॉक्स है वो सेडिमेंट से बनती है ना, सेडिमेंट्स को एक जगह बन के तो वहाँ पे है ना काफ़ी क्रेक्स मिल जाएंगे है ना. सो उसमें ये ज़्यादा पाया जाता है. ओके, सो हियर वी कैन से ऑप्शन सी इज करेक्ट. लेट्स मूव टुवर्ड्स द
Question number 4 of the series. Here you will find which of the following statement with reference to the surface inversion of the temperature, है ना. So here is surface inversion of the temperature. इतना इंडरलाइन करते चलो. यू आपको मतलब एकदम पेपर क्लीन नहीं रखना है. यू हैव टू मेक दिस टाइप ऑफ थिंग्स सो दैट लाइक ना आपका टाइम बचे प्लस योर एफिशिएंसी विल इंक्रीज with this type of methods, है ना. So first says it causes instability in the lower layer of the atmosphere. ये लोअर लेयर है ना एटमोसफियर की, उसमें इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर देता है. इतनी ज़्यादा तो नहीं होती, लोअर लेयर में नहीं होती, कुछ पार्ट्स में थोड़ी बहुत होती है बट इतनी ज़्यादा नहीं होती, है ना. सो फर्स्ट इज इंस्टेबिलिटी, आई थिंक नहीं, ये तो नहीं होगा, है ना. So first is wrong. Second says this inversion commonly lasts for few hours until the sun comes. Okay, yes, correct है ये. Inversion काफ़ी कम short period के लिए होता है. So yes, option B is correct option. Okay, let's move towards the question number 5th. Identify the clouds on the basis of the following characteristics related to it. First says they look like cotton wool. They exist in the patches and have flat base. They are generally formed at the height of 4 to 7 किलोमीटर. सो हियर साइरस कटा, क्योंकि यहाँ पे अगर देखो एल्टीट्यूड देखो तो मोस्टली आप पाओगे कि है ना क्यूमुलस की तरफ ज़्यादा जा रहा है ना, क्योंकि निम्बस और स्ट्रेटस में क्या होता है ना पेचेज एग्जिस्ट इन पेचेज वाला आ गया ना. तो यहाँ पे हम देखेंगे पहले जाएंगे साइरस पे. साइरस क्या है कि इसका एल्टीट्यूड है ना 10,000 to 12,000 के आसपास होता है ना. तो ये वाला तो नहीं होगा. देन आफ्टर वी विल मूव टुवर्ड्स द क्यूमुलस, है ना. क्यूमुलस यू विल फाइंड की मैच कर रहा है कि हाँ इसमें पेचेज भी होते हैं, ये फ्लैट बेस भी होता है, प्लस हियर यू विल फाइंड द कॉटन वूल्स ऑल्सो. सो हियर योर ऑप्शन विल be the option B. Okay, you have to read about the clouds are very very important for each and every exam that are conducted by the UPSC or any type of institution. Okay, so clouds are very very important. You have to go through that clouds in each and every exam. You will find questions from the cloud every time. Okay, question number 6 says identify the type of climate on the basis of following characteristic related to it. First is temperature is high throughout the year. Okay, high throughout the year. Okay, second says rainfall is variable with a short wet season and a longer dry season. Okay, third says the climate of Sudan and Paraguay is example of this climate. So here you will say Sudan and Paraguay type of climate is basically found in the tropical level. कॉमन सेंस लगाओ ना, सुदान और ना पराग्वे कंट्रीज कहाँ कौन से वाले एरिया में, बेसिकली ट्रॉपिकल एरिया में ही तो है. तो हियर यू विल फाइंड कि सी और डी में से होगा कोई सा, है ना. सो देन आफ्टर यू हैव टू रीड द फर्स्ट एंड सेकंड ऑल्सो, है ना. हियर इज टेम्परेचर द रेनफॉल इज वेरिएबल विद अ शॉर्ट ड्राई सीजन एंड ए शॉर्ट वेट सीजन. ओके, शॉर्ट वेट सीजन एंड लॉन्ग ड्राई सीजन. ओके, सो यहाँ पे भी अगर आप फिर फर्स्ट वाला पढ़ते हैं टेम्परेचर इज़ हाई थ्रू आउट द ईयर. सो यहाँ पे अगर मतलब कि देखा जाए मानसून क्लाइमेट्स में जो होता है जैसे कि इंडिया टाइप क्लाइमेट, यहाँ पे टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर हाई नहीं रहता ना, है ना. तो सेकंड वाला थर्ड वाला भी वी कैन से रॉन्ग है ना. सो हियर यू विल फाइंड द फोर्थ विल बी द ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन. ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स देन क्वेश्चन नंबर 7. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 सेज which of the following what is the correct sequence of the following salt in the ascending order according to their presence in the sea water. Okay, so in this that in oceans or in the sea water you will find that the like the water is called as hard water. So hard water here you will find that magnesium और कैल्शियम की वो होती है मतलब कि impurities. So here you can say if you have to arrange then you first you can ascending order है ना, ascending order सबसे कम बाद में सबसे बड़ा बड़ा ऐसे है ना. तो फर्स्ट इज कैल्शियम कार्बोनेट, यस इसमें ये सबसे कम होता है. ओके, देन आफ्टर मैग्नीशियम सल्फाइड. ओके, इससे ज़्यादा फिर मैग्नीशियम क्लोराइड यू हैव टू रिमेंबर मैग्नीशियम क्लोराइड की है ना इम्प्योरिटी सबसे ज़्यादा होती है ना. तो हियर यू विल गो विद द ऑप्शन फर्स्ट सेकंड. ओके, ऑप्शन सी. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 says which of the following statement with reference to humus is or are correct. ह्यूमस से रिलेटेड कौन सा, ह्यूमस इज बेसिकली द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मतलब फर्टाइल सॉइल, है ना. जो होता है ना हम देखते हैं जो पत्तियां वगैरह जब वो सड़ जाती है गल जाती है तो वो जो बनता है ना खाद उसको ह्यूमस बोलते हैं ना. सो हियर इट इज सेड इट इज ए डार्क कलर्ड
amorphous substances. Okay, dark colored amorphous substances. Okay, yes, definitely correct. Second says it being colloidal in the nature, it serves as the reservoir of nutrients. Definitely ये reservoir का काम करता है nutrients के लिए. So option C will be the correct option. Okay, let's move toward the question number 9. Which of the following biosphere reserve is spread in over the three states? So here you will find that option of A says Dihang and Dibang, option B says Nilgiris, option C says Nokrek, and option D says Sesachalam, है ना? So here you will find that Dihang, Dibang and Nokrek are like in the northeastern part of India, and here you will find Nokrek is I think in Arunachal Pradesh. Not sure, but yes, it is very like it is very small reservoir, biosphere reservoir, and Dihang and Dimang is also in I think in one state only. Not correct, not sure, but yes, definitely it's not in three states, है ना? And so here you will find there is an compare the confusion between option B and C. Okay, so in B and C you have to remember Sesachalam is I think in Andhra Pradesh and area है ना, and Nilgiri is in like है ना कर्नाटका वाला एरिया वाला है ना, नीलगिरी वाला है ना, ये वेस्टर्न घाट्स वाले एरिया में. तो ये वाला यस डेफिनेटली ये थ्री स्टेट्स में है. जब आप सदर्न पार्ट में देखोगे तो ये थ्री स्टेट्स में फैला हुआ है. सो हियर यू विल फाइंड दैट नीलगिरीज विल बी द ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन. ओके, okay, let me, here will be the Nilgiris will be the correct option. So question number 10 says river Danube does not flow through which of the following capital in the Europe? So here you have to remember no river Danube you can find ki I think second largest river of the Europe after the Russian Vyoga. हाँ, व्योगा कुछ ऐसे रिवर का नाम है ना. सो यू विल फाइंड कि रशियन रिवर के बाद में ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर है. सो इट इज़ लाइक है ना पासिंग फ्लोइंग थ्रू द कंट्रीज लाइक जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोशिया, और सर्बिया, बुल्गारिया एंड रोमानिया, मोल्डोवा एंड यूक्रेन, है ना. सो बेसिकली इट वॉज इन द न्यूज़ बिकॉज ऑफ द यूक्रेन. सो हियर यू विल फाइंड कि यस बेलग्रेड भी इसका मतलब है इसमें, मतलब कि मतलब कैपिटल सिटी है इसके मतलब कि फॉलोइंग में. और ये ना बुडापेस्टा भी है, वियना भी है, तो यहाँ पे प्राग वाला गलत हो गया. ओके, चेक प्राग कुछ ऐसे ये वाला गलत हो गया. ओके, सो option C will be the correct option in that. Now question number 13 says which of the following statement with reference to the eastern islands a UNESCO World Heritage Site is correct? Okay, so the eastern islands are part of Polynesia group of islands. यस डेफिनेटली, मतलब जनरल स्टेटमेंट है. इन स्टेटमेंट को गलत बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है एग्जामिनर के लिए, है ना, क्योंकि एग्जामिनर भी सोचता है कि इसको क्या गलत बनाएंगे, इसको पोलिनेशिया का पार्ट न बना के मतलब कि माइक्रोनेशिया का बना दो, कुछ ऐसे बना दो. बट ये करता नहीं है जनरली, मतलब कि यूपीएससी टाइप ऑफ एग्जामिनेशन में. यहाँ पे पॉसिबली जो होता है ना दे रखा वो करेक्ट ही होता है इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, है ना. सेकेंड इज इट इज़ ए टेरेटरी ऑफ साउथ अमेरिकन नेशन चिले, है ना. मतलब कि ईस्टर्न आइलैंड्स है. यस, इट्स फैक्चुअल क्वेश्चन. इफ़ यू वांटेड टू टेक ए रिस्क देन यू कैन गो विद द करेक्ट ऑप्शन, लाइक ना कि बोथ इज करेक्ट, बिकॉज हियर आर द प्रोबेबिलिटीज ऑफ 65 एंड 35 chances are maybe it may go wrong, but there are 65% chance that it will go right. Okay, so here option C will be the correct option. Question number 12 says question number 12 is saying which one of the following is the home of to the endangered mountain gorilla in the Africa? Okay, so here we will find ki Mount Kenya, Mount Kilimanjaro, Ngorongoro crater, and fourth is Virunga mountains, है ना. So it is factual question, it was in a news. So here you will find option D will be the correct. You have to remember Mount Kenya, Mount Kilimanjaro, because and Ngorongoro ये crater, because they are like ना related to the volcanoes, है ना. So you have to remember these also. Maybe CAPF और नेक्स्ट CDS में इनका ही कुछ ना कुछ पार्ट आ जाएगा, है ना. सो यू हैव टू रिमेंबर दैट. यू हैव टू लाइक है ना शुड डू सम माइंड मैपिंग अबाउट दिस टाइप ऑफ थिंग्स, है ना. ओके, द क्वेश्चन नंबर 13 says which of the following statement with reference to Jordan is
the country was created through the British mandate after World War One. ओके, वर्ल्ड वॉर वन के बाद में ब्रिटिश मैंडेट के थ्रू कंट्री का हुआ था. ओके, जब ओटोमन एम्पायर का मतलब कि जब वो हुआ था डिसइंटीग्रेट हुआ था उसके बाद में ये बने थे, है ना. सो इंडिया में ओटोमन मतलब कि आपको पता है ना ओटोमन एम्पायर से रिलेटेड है खिलाफत मूवमेंट 19 आई थिंक 19 का है या 17 का है. गांधी participated in that. Gandhi wanted to like na generate Hindu Muslim भाईचारा that time. So खिलाफत movement was that. And the है ना इससे रिलेटेड है जॉर्डन वाला है. सेकंड इज इट इज लैंड लॉक कंट्री. ओके, नॉट इट्स नॉट ए लैंड लॉक कंट्री. ये गल्फ ऑफ अकाबा है ना, गल्फ ऑफ अकाबा, गल्फ ऑफ अकाबा से ये बोर्न बाउंड्री शेयर करता है. तो ऑप्शन बी विल बी द रॉन्ग ऑप्शन. ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट. ओके, so let's move towards the question number 14. Okay, question number 14 says which one of the following place situated close to the Pearl River estuary in the Asia. Pearl River like estuary or delta is basically in the southern part of China. So here you can eliminate two options. You can eliminate these, and you got two options, option B, option C. Here you will find confusion among these two questions. So you can just, if you know, then you can use your brain. If you don't know, then you can take a guess. Hong Kong is like very near to China, southern part of China. So here you will go with the option B, है ना. Here you मतलब कि in this type of questions you have to know the like geographics, है ना, अबाउट द यू हैव टू नो द वर्ल्ड मैपिंग. थोड़ा थोड़ा तो आना चाहिए ना, जिसके कारण थोड़ा अंदाजा भी लगा सके, है ना. Like 15 question number 15 says which of the following statement is regarding to the Australia. Australia से regarding कौन सा है. So Australia सीरियस में आया है तो मे बी CAPF will also ask about the Australia. So you have to read about the Australia कि किस टाइप का है, क्या है. इकोनॉमिक रिसोर्सेज, पॉलिटिकल कंडीशंस, ना ये फिजिकल जियोग्राफीज एटसेट्रा. यू हैव टू रीड अबाउट द ऑस्ट्रेलिया. लेट मी बी वेरी क्लियर, नॉट ओनली ऑस्ट्रेलिया. आई विल सजेस्ट यू दैट आपको वेस्ट एशिया, जिसको मिडल ईस्ट बोलते हैं, वेस्ट एशिया वाला पार्ट है ना, जिसको वर्ल्ड मिडल ईस्ट बोलता है, इसको मिडल ईस्ट ही लिख देते हैं, पता नहीं चलेगा किसी को, है ना, क्योंकि सबको पता है, सब वेस्ट एशिया के नाम से कोई नहीं जानता, सब मिडल ईस्ट के नाम से जानते हैं ना. ये वेस्ट का नैरेटिव है, वो मिडल ईस्ट मानता है, बट ये हमारे वेस्ट एशिया का पार्ट है ना. ओके, मिडल ईस्ट. ओके, सो नेक्स्ट इज अबाउट द अफ्रीकन रीजन, है ना. ओके, सो एंड थर्ड इज यू कैन टेक द सदर्न पार्ट ऑफ साउथ एशिया वाला पार्ट, है ना, बिकॉज यहाँ पे होता है ना ज़्यादातर, क्यों पूछता है ना. और ये सम पार्ट ऑफ यूरोप, ये रसिया वाला पार्ट है ना, रसिया साइड वाला, है ना, रसिया वाला. यहाँ से ही वर्ल्ड मैप के क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप हो रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चंस कहाँ से पुटअप होते हैं वर्ल्ड मैप के, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कुछ ना कुछ न्यूज़ में हो, है ना. ये एरियाज लाइक मोस्टली न्यूज़ में रहते हैं, है ना. वेस्ट एशिया तो क्योंकि यहाँ पे इसराइल है, हमास वाला, ये गल्फ कंट्रीज़ है, तो ये वाला हो गया. सेकेंड इज अफ्रीका रीजन. अफ्रीका में मतलब कि ये मतलब कि सिविल वॉर्स हो गया, हंगर हो गया, तो इसके कारण ये न्यूज़ में बना रहता है इनकी कंट्रीज़. सूडान हो गया, दाफूर रीजन हो गया, तो ऐसे न्यूज़ में बना रहता है ना. So you have to like remember, you have to read about them carefully in current affairs also, so that that will help you in your examination. और डायरेक्टली इनमें से, इन तीनों में से जैसे मैंने थीम बताई है ना, इनमें you will find minimum 2 questions in your CAPF or CDS examination that is coming ahead on your head, है ना. So first question number 15 say about the Australia. With regard to Australia, the Coral Sea separates the Great Barrier Reef from the South Pacific. Yes, definitely correct. Here the second says the Great Barrier Reef divide range extend from Melbourne to Perth in Australia. नहीं, ये वाला मेलबर्न से पर्थ तक नहीं जाता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. इनकरेक्ट, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन. ओके, so question number 19 says, sorry 16 says, which of the what is the correct sequence of the following mountain ranges as one move from north to south, है ना, नॉर्थ टू साउथ जाना है ना. सो माई स्ट्रेटजी दैट, मैं जो मतलब तरीका याद रखता हूँ, है ना, मैं रखता हूँ कलज, है ना, कलज. ये काराकोरम,
कलज, ये वाला काराकोरम, ये लद्दाख, ये जांस्कर, है ना। ये नॉर्थ टू साउथ है ना। सो यहाँ पे मेरे को नहीं आता था कि कौन सा है, बट मेरे को पता था कि कलज वाला है, यानी कि यहाँ पे होगा काराकोरम पहले आएगा, फिर लद्दाख आएगा, फिर जांस्कर आएगा, है ना। सो मैं ये देखूंगा कि 1 नंबर बाद में, मतलब कि 3 नंबर और 4 नंबर, ये तीनों साथ में कहाँ आ रहे हैं। 1 नंबर 3 नंबर नहीं, 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर 3 नंबर डी में आ रहे हैं ना। हाँ, और यहाँ पे आप कॉमन सेंस भी लगाओगे, कुनलुन वाला पार्ट है जो कि हम मतलब कि जांस्कर के नीचे सुनते नहीं है ना, काराकोरम के नीचे सुनते हैं, लद्दाख के पास भी नहीं सुनते, ये है कुनलुन वाला सबसे नॉर्थ में है ना। सो हियर यू विल यूज योर कॉमन सेंस, और याद करने के लिए कलज है ही काराकोरम लद्दाख जांस्कर, काराकोरम लद्दाख जांस्कर, है ना। सो ऐसे आप याद कर सकते हो कलज वाले से, है ना। Question number 17 says which of the following statement with reference to the saline soil in India is correct, है ना। They are rich in nitrogen. No, they are not rich in nitrogen. Nitrogen NPK, you remember NPK. So I will so you know the composition of NPK, है ना. So I suggest you, like, है ना, the question for today, you have to comment down the, like, है ना, ratio of NPK in the soil, है ना. Okay, just go and comment down. ओके, आई विल सजेस्ट, डोंट, इफ़ यू डोंट नो देन गो एंड गूगल, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि आप गूगल पे जाओगे, आपको याद रहेगा। एनपीके साइंस में, मतलब साइंस का पोर्शन है, ये आ सकता है आपके एग्जाम में, है ना। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड सेज दे अकर्स इन द एरिड एंड सेमी एरिड रीजन एंड इन वाटर लॉक्ड एंड स्वाम्पी एरिया। स्वाम्पी एरियाज डेफिनेटली यस, स्वाम्पी एरियाज में होते हैं। एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज में जहाँ पे क्या होता है ना कि मतलब कि इवेपोरेशन से वाटर चला जाता है, प्लस जो कैपिलरीज होती है ना, जिसमें से वो, जिसमें जो है ना, जो सोल्ट होता है वो बाहर आ जाता है, जिससे सारी की सारी सॉइल सेलाइन हो जाती है ना। सो हियर यू कैन गो विद द ऑप्शन बी, है ना। नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 से Salal power project is situated on the which of the following river? It was in news, it was on the Chenab river, so you have to remember. And this time you have to mug up the Indus river system. आप कुछ भी कर लो, इंडस रिवर सिस्टम को छोड़ के नहीं जाना है. यू विल फाइंड 2 or 3 क्वेश्चंस फ्रॉम इंडस रिवर सिस्टम ओनली इन योर एग्जामिनेशन, अपकमिंग एग्जामिनेशन, है ना. क्वेश्चन नंबर 19 says which one among the following tributaries of Indus river does not originate in the Himalayas. हिमालयाज में कौन सी ओरिजिनेट नहीं होती. आपने अगर तो मतलब कि थोड़ा बहुत भी इंडस रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जब ये इंडस रिवर्स यहाँ से मिलके पंचनाद के बाद में आगे जाती है तो हुंजा आगे मिलती है. हुंजा जो कि आई थिंक पाकिस्तान में मिलती है, तो ये हिमालयाज में ओरिजिनेट नहीं होती है ना. सो हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट, है, मतलब कि ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी करेक्ट. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 20 सेज एज पर द एनुअल रिपोर्ट ऑफ 2023-24 ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट. बॉक्साइट इज बेसिकली आई थिंक रिलेटेड टू कॉपर, है ना. सो हियर यू विल फाइंड कि ज़्यादा से ज़्यादा माइनिंग कहाँ होती है. अगर आपको नहीं पता है देन जस्ट गो विद द ट्रेडिशन, है ना. थोड़ा बहुत कॉमन सेंस, थोड़ा बहुत ओपन माइंड, है ना, रीजनिंग एबिलिटी कि, और झारखंड में यस ये माइंस ज़्यादा झारखंड में होती है, तो झारखंड तो होगा ही होगा, है ना. सो झारखंड किस में दे रखा है, 3 में दे रखा है. सेकंड देखो मध्य प्रदेश, एमपी में उतनी ज़्यादा मतलब कि बॉक्साइट्स की हमने सुना नहीं है ना. ओडिशा में हमने काफ़ी ज़्यादा सुना है ना. कर्नाटका में भी होता है बॉक्साइट, बट नोट उतना नहीं होता जितना हम उड़ीसा झारखंड के बारे में सुनते हैं ना, मिनरल्स माइंस के बारे में, है ना. तो इस हिसाब से ऑप्शन लाइक है ना बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. एंड यू हैव टू रिमेंबर, लाइक है ना, रीड द इकोनॉमिक सर्वे. एक बार जस्ट गो थ्रू कर लो इकोनॉमिक सर्वे को, मोर देन एनफ, है ना. ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 21. ओके, we will try to do 30 questions in this session so that we can finish CDS in 4 papers on 4 episodes only. Okay, so question number 16 says which if your image appears to be erect no matter how far you stand from the mirror is likely to be. यहाँ पे इरेक्ट दे रखा है तो आप इसको रिमेम्बर याद ही करना पड़ेगा. ये वाला ऑप्शन डी हो गया. आइदर लाइक है ना प्लेन मिरर और कौन का ना, प्लेन मिरर तो सबको पता होता है, तो कन्फ्यूजन कहाँ पे होगा, ए और डी में होता है ना. सो यहाँ पे कनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर है, तो यहाँ पे ये वाला करेक्ट हो जाएगा. ओके, सो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22 सेज द रूल दैट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड ए स्ट्रेट कंडक्टर carrying current is it's basically
द डेफिनेशन ऑफ आई थिंक कौन से का होगा, यस, राइट हैंड थंब का. ओके, सो इट्स बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ राइट हैंड थंब रूल वाला क्या है ना, definition, the rule that determines the direction of a magnetic field produced around a straight conductor carrying cap current. So now your homework is that you have to like ना comment down about these three rules, है ना. इनके बारे में आपको ये पढ़ना है, फिर कमेंट करना है. इससे क्या होगा, आपको भी बेनिफिट होगा, प्लस जो दो और भी पढ़ रहे हैं उनको भी बेनिफिट होगा इस चीज़ का, है ना. So you have to comment down, it's your homework, you have to do your homework religiously. I am doing my work religiously, है ना. So do your homework regularly. Okay, question number 23 says a motorcycle has initial speed velocity. इनिशियल वेलोसिटी को हम v से u से लिख सकते हैं, u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, है ना. आफ्टर 3 सेकेंड्स, टाइम कितना दे रखा है, 3 सेकेंड्स, है ना. The velocity is final velocity v is equal to 7 meter per second. So the displacement कितना हुआ ऑफ द मोटरसाइकिल इन 3 सेकेंड, इस 3 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ. तो फर्स्ट जब स्पीड बढ़ी है तो हमें एक्सीलरेशन वो निकालना पड़ेगा. एक्सीलरेशन का क्या होता है, a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, है ना. यहाँ फाइनल वेलोसिटी कितनी है 7, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5, टाइम कितना है 3 सेकेंड्स, है ना. सो ए विल बी कितना हो गया 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यू हैव टू रिमेंबर ए आ गया, है ना. अब थोड़ा सा सॉरी ये तो नीचे नहीं जा रहा, वी हैव टू इसी को मतलब किसी को ऊपर ऊपर कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, है ना. यहाँ पे आ गया एक्सेलरेशन आ गया. सो go with the 3 equations that one of them is v square is equal to u square plus 2as. एज डिस्प्लेसमेंट हो गया, v है हमारे पास, u है हमारे पास, 2a भी है ना. v कितना हो गया 7 यानी 49 हो गया, 7 का स्क्वायर 49, u कितना हो गया 25 का स्क्वायर, 25 हो गया 5 का स्क्वायर, 2 इंटू ये एक्सीलरेशन कितना है 2/3 इंटू एस. ओके, सो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 24 बच जाएगा. यहाँ पे 24 इज इक्वल टू 4/3 इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना. 4/3 इस तरफ जाएगा, 24 इंटू 3 अपॉन 4, है ना, इज इक्वल टू एस, दैट इज डिस्प्लेसमेंट. यहाँ 4 से इसको काटो, ये 6 आ जाएगा. सो द डिस्प्लेसमेंट is equal to 18 meter. So option B will be the correct option. Okay, कॉमन सेंस, थोड़ा सीधा क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 24 says the minimum power required to lift a mass of 50 kg up to a vertical distance of 8 meter in 10 सेकेंड, है ना. हमें क्या देख रहा है, मास दे रखा है m इज इक्वल टू 5 kg, है ना. डिस्टेंस कितनी दे रखी है, हाइट दे रखी है, वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल यानी हाइट दे रखी है h, ये कितना हो गया 8 मीटर, हाइट 8 मीटर दे रखी है. टाइम कितना दे रखा है 10 सेकेंड, कितने सेकेंड के लिए उठाना है 10 सेकेंड के लिए. सो आपने पोटेंशियल एनर्जी का मतलब कि वो उसका फॉर्मूला पढ़ा होगा, है ना, वो होता है mgh. यहाँ पे क्या पूछ रखा है हमें, है ना, पावर इज इक्वल टू p इज इक्वल टू mgh अपॉन टाइम, है ना. सो यहाँ पे m कितना हो गया 50, g कितना दे रखा है 10, h कितना दे रखा है, हाइट कितनी है 8 मीटर, है ना. टाइम कितना दे रखा है, टाइम कितना देगा 10 सेकेंड्स, है ना. सो यहाँ पे अगर आप काटोगे, ये इससे कट गया, फिर हो गया 8 5, ये हो गया ऑप्शन ए, है ना. सो हियर ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन. ओके, कितना दिमाग लगाना पड़ा, जस्ट एक फॉर्मूला जो कि आपको कॉमन सेंस से भी पता चल सकता है. अगर कॉमन सेंस वाला पढ़ना है कि कैसे है ना न्यूमेरिकल्स को कौन से मतलब कॉमन सेंस से कर सकते हैं, देन यू कैन कमेंट डाउन, आई विल गिव यू ए वीडियो रिगार्डिंग दैट कि कॉमन सेंस से भी न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, बट वो कैसे कर सकते हैं, यू हैव टू नो दैट. ओके, फॉर एग्जाम से उसमें वो होता है ना 2-3 क्वेश्चंस में काम में आ जाता है आपको एग्जाम में. ओके, 25th क्वेश्चन सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. कौन सा करेक्ट नहीं है.
ऑल बॉडीज इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। यस, सबका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इवन मेरा भी ग्रेविटेशनल फोर्स है अपना, मेरे पास ये पेन है उसका भी ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। तो हमें आपस में खींच रहे हैं, बट वो है ना कि वो बैलेंस कर पाता है ना, बैलेंस नहीं कर पाता तभी मूव कर पाते हैं। ओके, तो क्वेश्चन ऑप्शन बी सेज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स फॉलोज फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशन वाला तो फोर्स अलग ही हो गया ना, लो गलत ही हो, अलग ही हो गया। सो इसको ये डाउट में रखते हैं ना। क्वेश्चन रीड द थर्ड, द वैल्यू ऑफ जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज जीरो। हाँ, डेफिनेटली जी जीरो क्यों होगा, है ना, क्योंकि डिस्टेंस जीरो हो जाएगी ना, तो अपने आप जीरो हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट ये डी सेज, ये कितना हो गया, ओके सेज मास एंड वेट आर मेजर्ड इन डिफरेंट यूनिट्स। ये डेफिनेटली मास को एम से, इसको किलोग्राम पर किलो, मतलब ये न्यूटन्स में, मतलब कि वेट को तो ऐसे मापा जाता है। मास में क्या होता है ना कि बॉडी का जितना मास है, प्लस वेट में क्या होता है ना, जो ग्रेविटेशनल फोर्स को भी हम इंगेज कर लेते हैं। ओके, सो ऑप्शन हियर यू विल फाइंड कि ऑप्शन बी विल बी द इनकरेक्ट, है ना, क्योंकि यहाँ पे न्यूटन्स के मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉलोज फ्रॉम द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। नहीं, ये फॉलो ऑफ मोशन वाला अलग है ना, लॉ ऑफ मोशन अलग है, प्लस ग्रेविटेशनल वाला अलग है, तो यहाँ पे नहीं हो सकता ना। 26th क्वेश्चन सेज द बॉडी फ्लोट इन ए फ्लूइड इफ द buoyant फोर्स इज ग्रेटर देन इट्स वेट। यस, डेफिनेटली ये तो कॉमन सेंस वाला, लेस होगा तो डूब जाएगा, जीरो होगा तो डूब जाएगा, इक्वल होगा तो फिर तैर नहीं पाएगा, फ्लोट नहीं कर पाएगा, है ना, और ग्रेटर होगा तभी फ्लोट कर पाएगा। ओके, सो ये सिली क्वेश्चंस है, ये आपको करने हैं, है ना, इनको आपको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, है ना। सो हियर 27th क्वेश्चन सेज ए मेटेलिक स्पेयर ऑफ मास of 1 kg and a volume of 2 into 10 to the power minus 4 meters cube is completely immersed in water. The buoyant force exerted by water on the sphere is, जहाँ पे डेंसिटी दे रखी है इतनी। सो हियर यू कैन अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइक, है ना, क्या दे रखा है, बुयंस फोर्स दे रखा है, तो हियर यू कैन से force F is equal to rho, that is density, V, that is your volume, and G, that is gravitational constant. Okay, so here just put the values. यहाँ पे रो क्या दे रखा है, रो क्या दे रखा है, रो है ये वाला 1000 kg पर मीटर क्यूब। ओके, सो बाद में V क्या देगा, वॉल्यूम क्या दे रखा है, 2 into 10 to the power, इसको नीचे ही लिख लेते हैं ना, 4 है, 4 है ना, एंड देन आफ्टर ये क्या दे रखा है, एक और दे रखा था ना, जी हो गया 10। सो इसको काटा पीटा कर लो। सो इफ़ यू कट इट एवरीथिंग विल बी कटेड। ये वाला 3 इससे, 1 इससे 4 कट जाएगा, बच के कितना 2, फोर्स F इज इक्वल टू 2 न्यूटन। ओके, सो हियर ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, है ना। इफ़ यू मूव नेक्स्ट यू विल फाइंड कि एक लाइट बल्ब है रेटेड एट 60 वोट एट 220 volt, sorry 60 volt at 220 volt has a potential difference of 110 watt across its ends. The power dissipate in this light bulb is, जो पावर होती है इसमें वो देखनी है ना। सो हियर द लाइक, है ना, द फॉर्मूला इज P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, है ना। सो इसके लिए देखो, पहले इसके लिए पावर देखो, है ना। सो हियर यू विल फाइंड कि ये R निकाल लेते हैं इसमें से, है ना। सो R इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P। यहाँ पे V स्क्वायर कितना हो गया, 220 वोल्ट, है ना, 220 का होल स्क्वायर अपॉन P। कितना पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 60। ओके, नाउ लेट्स पुट दिस वैल्यू ऑफ P, सॉरी R की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इसको इस नेक्स्ट वाले में रखते हैं, V स्क्वायर अपॉन R, है ना, इसको 2 लिख देते हैं, है ना। यहाँ पे ये हो जाएगा V स्क्वायर कितना हो जाएगा 110 इंटू 110, है ना, नया वाला, प्लस R कितना हो जाएगा, R ये है, तो यहाँ पे अगर इसको लिखेंगे अपॉन, इसको अपॉन में लिख देते हैं पहले, बाद में समझा देंगे, है ना। ये हो गया 220 इंटू 220 अपॉन कितना, R कितना हो गया 60, ये वाला 60 हो गया, है ना। सो अब इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको सोल्व करेंगे। सो यू विल फाइंड कि ये ऊपर जाएगा
तो p इज इक्वल टू 110 अपॉन 220 इंटू 220 इंटू 60। सो यू विल फाइंड, ये वाले कट जाएंगे, ये यहाँ पे 2 इंटू 2 आ जाएगा, ये 2 इससे कट जाएगा 30, ये फिर 2 इससे कट जाएगा 15। सो हियर ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सी होगा पहले देख लेते हैं। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 15 वोट विल बी द पावर डिसिपिएटेड इन दिस लाइट बल्ब। 15 वोट हो गया। ओके, सो यहाँ पे आप कर सकते हो इसको ऐसे। सो 29 क्वेश्चन सेज विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ए सिंपल माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या करता है, छोटी चीज़ों को बड़ा दिखाता है ना। छोटी चीज़ों को दिखाएगा बड़ा, तो वहाँ पे कन्वर्ज करने की ज़रूरत पड़ेगी। कन्वर्ज किससे करोगे, कन्वर्जेंस लेंस से करोगे ना। डाइवर्जेंस लेंस से तो वो डाइवर्ज कर देगा चीज़ों को, है ना। तो ये बड़ी चीज़ को छोटा दिखाने में काम में आता है ना, कि छोटी चीज़ को बड़ा दिखाने में। यानी कि छोटी चीज़ को अगर बड़ा दिखाना है तो आपको कन्वर्जिंग लेंस का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30 says the force with which the earth attracts an object is called, मतलब कि क्या कहलाता है ना। सो अभी मैंने आपको बताया था, है ना, कि फोर्स क्या कहलाता है ना। सो एक क्वेश्चन में हमने देखा था मास और वेट के रिलेटेड है। सो हियर यू विल फाइंड कि अगर इफ़ यू डोंट नो देन यू विल स्टक इन दैट। बट अगर आप देखोगे, हाँ, तो मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगता है, वेट के इज इक्वल टू लगता है ना, कि मास के। मास तो होता है ना आपकी बॉडी में कितना मास है ना। फिर वेट क्या होता है, वेट चेंज होता है, मास मतलब कांस्टेंट रहता है। अगर आप मून पे जाओगे तो आपका वेट 1/6 टाइम हो जाएगा, बट मास सेम रहेगा, है ना। मून इज इक्वल, मतलब कि मून पे मतलब कि मास आपका अर्थ से 1/6 टाइम हो जाएगा, बट मून पे मास है ना, मास एट अर्थ इज इक्वल टू मास एट मून। कहीं पे भी चले जाओ आप, मास चेंज नहीं होगा, वेट चेंज हो जाएगा। उसी के हिसाब से ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज होता है। आपने सुना होगा ना कि डिफरेंट प्लैनेट्स का और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का मास अलग अलग होता है, उसी हिसाब से ये होता है। ओके, सो वी हैव डन 30 क्वेश्चन इन दिस सेशन एंड इन दिस टाइम, मतलब कि इसी प्रकार नेक्स्ट तीन एपिसोड्स में वी विल फिनिश द 2025 फर्स्ट CDS paper. So for today that's enough, and I hope you enjoyed the video and you like the video. I suggest you that you should do your homework and write the answers in the comment that I told you. Also don't forget to share this video with your friends, as well as fill the Google form if you wanted to connect with us through our mentorship support. I suggest you that is mandatory for everyone, because that will be game changer in this field, है ना। You will find that is the most creative idea that we are applying to in today's world here, that is everyone is paying like, है ना, charging money, and we are providing that for free. So that is the golden opportunity for you. So I suggest you that you should go and fill your Google form and avail your free mentorship program. Okay, so thank you, have a good day.